In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. टाटो बच्चों, उम्मीद कि तुम ٲسِو ٹھیٖک चूँकि तुम چھُو زانان سکوٗل چھِ پٔتمہِ ہفتہٕ پٮ۪ٹھ بنٛد تِکیازِ یُس یہِ وٕنکیٚنس سٲرسٕے دُنیاہس یہِ بٮ۪مٲرۍ لٔجمٕژ چھِ کورونا وایرس دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ کیسن منٛز اضافہٕ گژھان تہٕ بچن ہٕنٛز سیفٹی مدِ نظر تھٲیِتھ نیوٗ سرکارن اکھ فٲصلہٕ اکھ تِمو دوٚپ کہِ چوٗنٛکہِ بچہِ ہسا چھُ آسان زیادٕ اِمیوٗن یہِ لیس اِمیوٗن ٹُو وایرس یہِ چھُ اَمہِ وایرسُک شِکار ہٮ۪کان آسٲنی سان گٔژھِتھ اَمہِ کِنۍ تھٲے یِمو سکوٗل بنٛد تہٕ اُستاد چھُ سکوٗلن منٛز حٲضِر اُستاد چھُ کوٗشِش کران کہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گٔژھۍ أسۍ بچس تام وٲتِتھ ہٮ۪کٕنۍ سکوٗل بنٛد آسنٕکۍ باوجوٗد تُل سرکارن حال حالٕے اکھ قدم اکھ تِمو دوٚپ کہِ اُستاد کٔرِنۍ سا پرسٕکۍ پٲٹھۍ آن لاین تہٕ آف لاین کلاسز شروٗع گۄڈٕ ونہٕ بہٕ تۄہہِ آن لاین کلاس کیٛاہ گوٚو آن لاین کلاس گوٚو کہِ یتھ منٛز ڈِجٹلی یعنی فونہٕ کہِ ذٔریعے یا سکریٖن کہِ ذٔریعے ٹیٖچر تہٕ بچہِ اکھ أکِس آمنے سامنے آسہِ سکریٖنس پٮ۪ٹھ آسہِ تتھ چھِ ونان آن لاین کلاس آف لاین کلاس گوٚو کہِ اُستاد ترٛایہِ پنُن امہِ سبقُک ویٖڈیو کیٛاہ آسہِ أمِس پرناوُن یہِ ویٖڈیو تُلہِ یہِ ترٛایہِ یہِ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ اور امہِ پتہٕ کرِ یہِ یوٗٹیوٗبٕچ لِنک چوٗنٛکہِ تُہنٛدِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ آلریڈی پرس اکھ گرُپ کھوٗلمُت اپنا بچہ اپنا ٹیٖچر اپنا سکوٗل تتھ منٛز کرِ یہِ لِنک پیسٹ یہِ ترٛایہِ لِنک امہِ یوٗٹیوٗب ویٖڈیوچ تہٕ امہِ پتہٕ ہیٚکِو تُہۍ یہِ کلاس آسٲنی سان وٕچھِتھ تہٕ اُمید چھِ کہِ تُہۍ کٔرِو نہٕ یہِ وقت ضایہِ کینٛہہ بغٲر ضایہِ کرنہٕ ورٲے وٕچھِو تُہۍ یِم ویٖڈیو چوٗنٛکہِ آز چھُ نیٹؤرک سِسٹم تہِ ٹھیٖک آز چھُ 4G سِسٹم چلان تِمن دۄہن اوس 2G سِسٹم سپیٖڈ ٲس واریاہ کم آسان نیٹس تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ٹیٖچر ترٛایہِ تۄہہِ پنُن پنُن کلاس تہٕ اسہِ چھِ اُمید أسۍ چھِ یِہے اُمید تۄہہِ نِش تھاوان کہِ تُہۍ کٔرِو یہِ حظ یہِ یِمہٕ ویٖڈیو سیٖن تُہۍ وٕچھوُکھ یِم ویٖڈیو تہٕ أتھۍ سلسلس منٛز چھُ مےٚ آز کلاس 6th ساینسُک اکھ ٹاپِک اکھ چوٗنٛکہِ تۄہہِ اگر یاد آسہِ یِم بچہِ سکوٗل یِوان ٲسۍ چپٹر 2 اوس اسہِ کوٚرمُت مُکمل کمپوننٹس آف فوڈ اوس ساینسس چپٹر 2 یُس اسہِ مُکمل کوٚرمُت اوس تہٕ امی چپٹرٕکۍ چھِ أسۍ آز کوسچن لیکھان کوسچن کرو أسۍ آز امہِ چپٹرٕکۍ لیکھو أسۍ آز تہٕ تُہۍ ہیٚکِو سکریٖنس پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ کوسچن نمبر 1 چھُ نیم د میجر نیوٹرینٹس ان اور فوڈ جو ہم غذا کھاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اس غذا میں کچھ نیچرلی کچھ سبسٹینسز ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے بہت ہی ضروری ہیں ان کو نیوٹرینٹس کہا جاتا ہے تو اب آپ کو یاد آیا ہوگا کہ کون کون سے نیوٹرینٹس ہماری اس غذا میں ہوتے ہیں تو اس کا ہم جواب لکھیں گے میجر نیوٹرینٹس ان اور فوڈ آر کاربوہائیڈریٹس پروٹینس لپڈس ان کا دوسرا نام ہے فیٹس وائٹامنس منرلس اینڈ ڈائٹری فائبرس یعنی جو فائبرس ہوتے ہیں دے آر دا نیوٹرینٹس تو اس کا جواب میں نے بالکل لکھا ہوا ہے میجر نیوٹرینٹس ان اور فوڈ آر کاربوہائیڈریٹس پروٹینس لپڈس وائٹامنس منرلس اینڈ ڈائٹری فائبرس اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے نیم دا فالوئنگ اے پارٹ آپ کو صرف نام بتانا ہے ان کا پارٹ اے میں دا نیوٹرینٹس وچ مینلی گیو انرجی ٹو آور باڈی تو ان 6 نیوٹرینٹس میں سے کچھ نیوٹرینٹس ایسے ہیں جو ہمارے جسم کو طاقت بخشتے ہیں طاقت فراہم کرتے ہیں تو ان کا آپ کو نام لکھنا ہے اسی طریقے سے پارٹ بی نیوٹرینٹس دیٹ آر نیڈیڈ فار دا گروتھ اینڈ مینٹیننس آف آور باڈی میں نے آپ کو بالکل یہ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کون سا نیوٹرینٹ اس کا فنکشن کیا ہے یہ کس میں پایا جاتا ہے وہ سب چیزیں میں نے آپ کو کلاس کے دوران بتائی ہیں تو دوسرا جو ہے آپ کو ان نیوٹرینٹس کے نام بتانے ہیں جو ہمارے جسم کے گروتھ کے لیے یعنی جس سے ہمارا جسم بڑھتا ہے یا جس سے ہمارا جسم جو ہے وہ ہیلدی رہتا ہے مینٹین رہتا ہے تو ان کا نام بتانا ہے اس کے لیے کون سے نیوٹرینٹس درکار ہے
इसी तरीके से पार्ट सी में आपको बताना है, उसका नाम लिखना है विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। आँखों की बीनाई रखने के लिए या आँखों की बीनाई के लिए हमें किस विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। या आपको बार बार, अगर आप में से कोई भी बच्चा इस बीमारी से या इस बीमारी का शिकार है तो डॉक्टर ने उसको बताया होगा कि आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सा विटामिन खाना चाहिए। तो इनका नाम लिखना है। इसी तरीके से पार्ट डी में मिनरल दैट्स रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। वो कौन सा मिनरल है जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ मजबूत रह सकती हैं या सेहतमंद हो सकती हैं। तो पहला आपको वो उस न्यूट्रेंट का नाम बताना है जो हमारे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स भी देते हैं, एंड फैट्स या लिपिड्स हम लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इसी तरीके से दूसरा है द न्यूट्रेंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी जिस्म के लिए जिन न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से हमारा जिस्म सेहतमंद रहता है, वो न्यूट्रेंट्स क्या है। पार्ट बी में हम लिखेंगे प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। तो इसके बाद सी पार्ट है हमारी आँखों की बीनाई के लिए कौन सा विटामिन का होना ज़रूरी है, दैट्स विटामिन ए। और इसी तरीके से वो मिनरल जो हमारी बोन्स के लिए नहायत ही कारआमद है या ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें कौन सा मिनरल चाहिए, दैट्स कैल्शियम। इसके बाद सवाल नंबर 3 है नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। आपको दो दो ग़िज़ाओं के नाम बताने हैं जिनमें यह चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे ए पार्ट, दो ग़िज़ाओं के नाम जिनमें फैट्स पाया जाता है। बी पार्ट, दो ग़िज़ाओं के नाम जिनमें स्टार्च पाया जाता है यानी कार्बोहाइड्रेट। सी पार्ट, डाइटरी फाइबर, जिसमें ये दो फूड्स के नाम जिसमें डाइटरी फाइबर पाया जाता है। और इसके बाद पार्ट डी जो है, दो फूड्स के नाम बताने हैं जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया है कि किन फूड्स में कौन सा न्यूट्रेंट पाया जाता है। ठीक है, आप फैट्स खाते होंगे घर में या वो चीज़ें खाते होंगे जिनमें फैट्स है। तो ए पार्ट में आप लिखेंगे क्रीम कामा बटर। तो पार्ट बी जो है, पार्ट बी में हमने बताना है दो ग़िज़ाओं के नाम जिनमें स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसमें आता है राइस कामा व्हीट। पार्ट सी जो है जिसमें डाइटरी फाइबर पाया जाता है, तो इसमें आता है होल ग्रेन्स और रॉ वेजिटेबल्स। इसके बाद पार्ट डी जो है प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें मिल्क आता है और सोयाबीन। तो ये 3 सवाल जो मैंने आपको दिखाए ये आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको सिर्फ बताना है, टिक करना है, टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। जो चीज़ें सही हैं इनको टिक करना है। ए, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। अगर हम सिर्फ चावल ही खाएं तो चावल के खाने से, चूँकि मैंने आपको बताया चावल में सिर्फ एक ही न्यूट्रेंट होता है, दैट्स कार्बोहाइड्रेट। क्या चावल के खाने से हमारे जिस्म की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, यानी जो हमारे जिस्म को न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत है, बाकी न्यूट्रेंट्स की, क्या सिर्फ चावल खाने से वो फुलफ़िल हो सकता है, वो पूरा हो सकता है? आपको बताना है टिक या क्रॉस। ठीक है, इसका आप ये लिखेंगे। इसके बाद बी पार्ट, डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। अगर किसी न्यूट्रेंट की कमी हमारे जिस्म में होगी तो उसके बाद हमारे जिस्म में कोई बीमारी लग सकती है, उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। यानी किसी न्यूट्रेंट के कमी की वजह से जो बीमारी लगती है इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। क्या उस डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं अगर हम बैलेंस्ड डाइट खाएंगे? बैलेंस्ड डाइट का मतलब मैंने आपको बताया है कि बैलेंस्ड डाइट वो डाइट होता है जिसमें हर किस्म की न्यूट्रेंट पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी, फैट भी, विटामिन भी, मिनरल भी, डाइटरी फाइबर भी। ओके, इसके बाद पार्ट सी है, बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। चूँकि लाजमन एक ही ग़िज़ा में एक ही किस्म का न्यूट्रेंट पाया जाता है, तो हमें चाहिए कि हमारे जिस्म को
सेहतमंद रहने के लिए बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत है। तो बैलेंस्ड डाइट हमें तभी मिल सकता है जब हम वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स खाएंगे, बहुत सारी किस्म के ग़िज़ाएँ हम खाएंगे। तो इसके लिए आपको बताना है टिक या क्रॉस। इसके बाद डी है मीट अलोन इज सफिशेंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। क्या सिर्फ गोश्त खाने से क्या सिर्फ गोश्त खाने से हमारी जिस्म की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है? क्या सिर्फ गोश्त खाने से हमारे जिस्म को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं? तो इसके लिए मैंने आंसर लिखा है बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो इसका मैंने कुछ नहीं डाला है, तो यानी हमें सिर्फ टिक डालना है, तो ये क्रॉस है। इसके बाद भी है डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। लाजमन डेफिशिएंसी डिजीज तभी हम रोक सकते हैं जब हम बैलेंस्ड डाइट खाएंगे, तो इट इज़ करेक्ट। बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। तो चूँकि बैलेंस्ड डाइट लेने के लिए हमारे जिस्म को जो बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत पड़ती है उसमें ये ज़रूरी होना चाहिए कि इसमें बहुत सारी फूड आइटम्स, बहुत सारी ग़िज़ाएँ, तो ये भी ठीक है। मीट अलोन इज़ सफिशेंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। हम सिर्फ गोश्त खाने से ही हमारे जिस्म को तमाम न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते। तो 2 का हमने टिक मारा, पार्ट बी और पार्ट सी को। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक जो मैंने आपको ये सवाल लिखाए हैं, इनको आप अपनी कॉपी पे कलम बंद करें और साथ साथ याद भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।